اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو۔ انہوں نے سالار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہاری لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف سٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ سکندر عثمان اسے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے، میرے سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی، میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کے بجائے جاب کرنا چاہی، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر سنجیدگی سے بات کر لیں۔ سکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہے۔ تمہیں اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانا چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اور صرف تمہارے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کر دے گی، تمہیں اندازہ ہے؟ کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشنز دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی۔ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنی کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو، اتنا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اس اسکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو۔ انہیں آسائشیں دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف سٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے تم نے اپنے اعصاب پر؟ ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پاپا، میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے۔ سالار نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، آپ نے اپنی زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں۔ میں واقف ہوں، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ سکندر نے کہا، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے توقف سے کہا، تم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچو، اپنی شادی کے بارے میں۔ ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسے، بچکانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ، میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال ہے اس پروجیکٹ کا، پاپا مجھے اسے شروع کرنے تھے۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز اور وہ بھی اپنے وسائل سے
चंद साल पहले के सालार सिकंदर को जानने वाले कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। खुद उसे भी यकीन नहीं आता कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था, मगर ये सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकालते हुए उसे अंदाजा हुआ था कि इसके लिए प्रोजेक्ट कम से कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में उसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी जिन पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करता था। वो अपने बैंक अकाउंट में रकम जानकर हैरान हो गया था। वो ऐसा शख्स नहीं था जिससे पैसा जमा करने की तवक्को की जा सकती थी। एमफिल के लिए उसके पास स्कॉलरशिप था। उसे कम से कम उसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। उस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते फिरते उसने पहली बार वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को गौर से देखा था। उसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी महंगी चीज़ नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। उसका किचन भी खाने पीने की चीज़ों से तकरीबन खाली था। कॉफ़ी, चाय, दूध, इस तरह की चंद दूसरी चीज़ें। उसके अपने अपार्टमेंट में बहुत कम वक्त गुजरता। जो वक्त गुजरता वो सोने में गुजरता। यूनिसेफ पर अपनी जॉब पर जाते हुए भी उसके पास पहले से मौजूद कपड़ों और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरतता रहा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आखिरी बार इस तरह की कोई चीज़ कब खरीदी थी। अपने साथ काम करने वालों और यूनिवर्सिटी में अपने कुछ फेलोज के अलावा वो न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर दानिस्ता तौर पर उसने खुद को एक महदूद सर्कल में रखा हुआ था और लोगों के साथ भी उसकी दोस्ती बहुत रस्मी किस्म की थी। वाहिद चीज़ जिस पर वो खर्च करता रहता था वो किताबें थी। उस लाइफस्टाइल के साथ अगर उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई थी तो ये कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं थी। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, उसकी जिंदगी के मामलात में चौथी कोई चीज नहीं थी। एमफिल के दौरान सालार ने यूनिसेफ छोड़कर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया। एमफिल करने के बाद सालार की पोस्टिंग पेरिस में हो गई। इससे पहले वो एक फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था, मगर अब यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा था। गुज़िश्ता 5 सालों में वक्तन फवक्तन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पेरिस जाता रहता था, मगर इस बार वो पहली दफ़ा लंबे अरसे के लिए वहाँ जा रहा था। एक आशना दुनिया से नाशना दुनिया में, उस दुनिया में जहाँ वो ज़बान तक से वाकिफ नहीं था। न्यूयॉर्क में उसके बहुत से दोस्त थे। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता हो। यूनिसेफ में किए जाने वाले अनथक काम की तरह वो यहाँ आकर एक बार फिर उसी तरह काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद के नवाही इलाके में शुरू किया जाने वाला वो स्कूल यहाँ भी उसके जहन में महव नहीं हुआ था। बाज़ दफ़ा उसे हैरत होती थी कि अपनी जॉब में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद आखिर उसे कभी फुरकान की तरह स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर उस स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही उसके लिए कोई गहरी निस्बत रखता हूँ। उसने शुरू की मुलाकात में एक बार फुरकान से कहा था। क्यों? फुरकान ने पूछा था। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास एहसास मेरे दिल में नहीं है। उसने कंधे उचकाकर कहा था। ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारा मुल्क है? हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए ख़ास एहसास हैं? अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, इसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, उसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने इस बार उसे हैरानी से देखा। दरअसल वतनियत पर यकीन नहीं रखता। उसने फुरकान को हैरान देखकर वजाहत की। या फिर मुझे उन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में दिक्कत महसूस होती है जहाँ मैं रहता हूँ। मैं कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूँ तो अमेरिका को भी याद नहीं करूँगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सारा, फुरकान ने बेख्तियार कहा। क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी अपने मुल्क के लिए या उस जगह के लिए कोई ख़ास एहसास ही ना रखे जहाँ वो रहता है? फुरकान को उसकी बात पर यकीन ना आया था, मगर उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पेरिस आने के बाद उसे न्यूयॉर्क की कोई चीज़ याद नहीं थी। न्यू हेवन से न्यूयॉर्क आते हुए भी उसे वहाँ एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो इन दिनों यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतमाम होने वाली किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। उसे वहाँ एक बिजनेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ उमूर भी तय करने थे। वो लाहौर में उसके क़याम का 3रा दिन था। उसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और उसके बाद वो ज़रूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। माल रोड पर जाते हुए अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने सालार की खिड़की के पास आकर कहा,
सर, गाड़ी में कोई दूसरा टायर मौजूद नहीं है, मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप उस पर चले जाएं। सालार ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं टैक्सी खुद रोक लेता हूँ, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सी नजर आ रही थी। सालार का रुख उसी तरफ था जब एक कार ने एकदम उसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई थी और उसके रुकने पर सालार ने फुटपाथ पर चलते हुए उसमें बैठे शख्स को एक ही नजर में पहचान लिया। वो आकिफ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले उसकी सरगर्मियों का वो एक मरकजी किरदार था। आकिफ और अकमल, वो उन्हीं दोनों के साथ अपना ज्यादा वक्त गुजारता था और उससे सालार की दोबारा मुलाकात कई सालों बाद हो रही थी। वो उन सब कुछ छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी उसने कभी उनके साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उनकी कोशिशों के बावजूद सालार उनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था। और अब इतने सालों के बाद वो एकदम इस तरह अचानक उसके सामने आ गया था। सालार के आसाब एकदम तन गए थे। आकिब बड़े जोशो खरोश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। सालार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की इत्तला क्यों नहीं दी? उसने यके बाद दीगरे सवालात की बौछार कर दी। उसने सालार के अंदाज में झलकने वाली सर्द मेहरी पर गौर नहीं किया था। सालार के जवाब देने से पहले ही आकिफ ने दोबारा पूछ लिया, यहाँ माल रोड पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सालार ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आकिफ ने बेतकल्लुफी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है, सालार ने तेजी से कहा। आकिफ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो। उसने बाजू पकड़कर खींच लिया। सालार सटपटाया, लेकिन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका मूड बहुत खराब होने लगा था। तुम तो स्टेट्स पढ़ने चले गए थे और पता चला कि तुमने वहां जॉब कर ली है, फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियां गुजारने आए हो? हाँ, सालार ने मुख्तसरन कहा। वो इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में कहाँ ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते या मुझे फोन करते। कब आए यहाँ? आकिफ ने कहा। कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, जरूरत नहीं होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूँ। सालार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ाना चाहता था। उसे उससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद उसके साथ गुजरने वाला माजी था जो उसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर। आकिफ ने ऑफर की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खाकर निकला हूँ, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए, सालार ने कहा। गुड, अभी भी आजाद फिर रहे हो? आकिफ ने गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो। सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने उससे बात करते हुए ग्लो कंपार्टमेंट खोलकर अंदर से कैसेट निकालनी चाहिए। उसका ध्यान जरा भटका और कैसेट निकालते निकालते ग्लो कंपार्टमेंट से बहुत सी चीजें सालार की गोद और नीचे उसके पैरों में जाकर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेख्तियार कहा। सालार झुककर चीजें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वो उन चीजों को समेट कर ग्लो कंपार्टमेंट में रखने लगा था जब वो ठिठक गया। किसी ने उसके जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ा दिया। ग्लो कंपार्टमेंट के कोने में ईयर रिंग्स पड़े हुए थे। सालार के हाथों में बेख्तियार लर्जिश आ गई। बायां हाथ बढ़ाकर उसने उन ईयर रिंग्स को बाहर निकाल लिया। वो अब उसके हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रहे थे। वो बेयकीनी के आलम में उसे देख रहा था। बहुत साल पहले उसने इन ईयर रिंग्स को किसी के कानों में देखा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो उन्हें अब देख रहा था। उसे कोई शुबा नहीं था, वो इमामा हाशिम की ईयर रिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज पर उनके डिजाइन उतार सकता था, हर पेचो खम को। आकिफ ने उसकी हथेली से वो ईयर रिंग्स उठा लिए। किसी ने जैसे सालार का सख्ता तोड़ दिया था। आकिफ उन ईयर रिंग्स को एक बार फिर एक ब्लू कंपार्टमेंट में रख रहा था। ये ईयर रिंग्स, वो अटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सालार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहां रखता। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। फिर उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, यार है एक गर्लफ्रेंड मेरी, पिछली रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई थी।
कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए, क्योंकि आज मेरा उसकी तरफ जाने का इरादा है। आकिफ बड़ी बेतकल्लुफी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सालार के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या नाम है उसका? इमामा, रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती। यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है। उसने आकिफ को देखते हुए सोचा। सुनोबर। आकिफ ने उसका नाम बताया। सालार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें ग्लू कंपार्टमेंट में रखकर उसे बंद कर दिया। उसे बाकी गलत फहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश से टेक लगाकर सालार ने गहरा सांस लिया, मगर ये उसका असली नाम नहीं है। आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम उसका इमामा है। सालार के कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुका, होंठों में दबा सिगरेट लाइटर से चला रहा था। तुमने क्या कहा? सालार की आवाज में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा। नाम बता रहे थे तुम उसका? हाँ, इमामा। तुम जानते हो उसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार यकटक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब उसकी मिट्टी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होंठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सालार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज उसे खाई सा आती महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहां उसने कभी उमामा के होने का तसव्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा उसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, उसके हाथ की बंद मुट्ठी को, उसके कपकपाते होंठों को, उसके बेरब्त बेमानी लफ्जों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। उसने उसके कंधों पर तसल्ली आमेज अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे और उसके दरमियान भी कुछ है तो कोई बात नहीं। हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहका लगाया, फिर उसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उन दो सवालों के साथ साथ सालार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद उसके साथ क्या हो सकता था। उसने पलक झपकते ही आकिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पांव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सालार ने उसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ हवास बाख्तगी की हालत में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? उसने सालार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश में उसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सालार जवाबन घुर्राया। उसके हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा। उसने कुछ गुस्से और कुछ हवास बाख्तगी के आलम में सालार के मुंह पर मुक्का मारा। सालार बेख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। उसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे वाली गाड़ी उनसे नहीं टकराई। सालार दोनों हाथों से अपने जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दोहरा हुआ था। आकिफ ने अपने होश आवाज को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान सेली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सालार तब तक सीधा हो चुका था। वो अपने हाथ की हथेली से होंठों और जबड़े को दबाए विंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद मिनट पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बातें करते करते उसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सालार की तरफ बढ़ाया। उसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने यह के बाद दीगरे दो टिश्यू निकाले और होंठ के उस कोने को साफ करने लगा जहां से खून रिस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते हुए दोबारा ईयररिंग्स का ख्याल आया। उसने एकदम झुककर पायदान पर ईयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या? आकिफ बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो ईयररिंग्स, सालार ने मुख्तसरन कहा। आकिफ बेख्तियार चिल्लाया, क्या प्रॉब्लम है सालार? मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके ईयररिंग्स है। मेरा प्रॉब्लम है ये ईयररिंग्स या उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। सालार एकदम रुक गया। उसे अपनी नामाकुल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की की तरफ से बाहर फेंकते हुए उसे दम घुटता महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पर बल लिए उसको देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज था जिसने उसे मुश्तइल किया था।
वो दोबारा गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सालार ने उसके रुकने पर कहा। ओके फाइन। आतिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम और सनोबर वो फिर रुके। तुमने कहा था उसका नाम इमामा है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। आकिफ को बेइख्तियार उसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। वहशत, बेचारगी, खौफ वो हर तासुर लिए हुई थी। हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था शुरू में, एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब उसने मुझे बताया। उसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सालार ने मोहम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, फेयर, टॉल। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल ही पहले काले थे, अब डाई किए हुए हैं उसने। और क्या बताऊं, वो जिचवा। सालार ने आंखें बंद करके विंड स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है उसका नाम। वो विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए पड़पड़ाया। पता नहीं, बाप का तो नहीं बताया उसने, ना ही मैंने पूछा। आकिफ ने कहा, इमामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब। मैं जिम्मेदार हूं इस सब का। किस चीज के जिम्मेदार हो तुम? आकिफ को तजस्सुस हुआ। सालार खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिफ जवाब का इंतजार करता रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं, अभी और इसी वक्त। आकिफ कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर एक कॉल मिलाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता रहा, फिर उसने कंधे उचकाते हुए कहा, उसका मोबाइल ऑफ है, पता नहीं वो घर पर मिले या ना मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो आकिफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके घर पर। आधे घंटे बाद वो दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर खड़े थे। वहां पहुंचने तक उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। आकिफ अब उस वक्त को कोस रहा था जब उसने सालार को लिफ्ट दी थी। चंद बार हॉर्न देने पर अंदर से एक आदमी बाहर निकल आया। वो चौकीदार था। सनोबर घर पर है? आकिफ ने उसे देखते ही पूछा। नहीं, बीबी साहिबा तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकिफ ने सालार को देखा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकिफ उस आदमी के साथ अंदर चला गया। उसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको उससे बात करनी है? उसने अंदर बैठते ही पूछा। मुझे उससे मिलना है। आकिफ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सफर फिर उसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सालार के लिए वो जगह नई नहीं थी, सिर्फ उस तकलीफ का एहसास नया था जो उसे इस बार हो रहा था। आज यही है, किसी आदमी ने यहाँ की कुछ लड़कियों को बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए, वो भी उनके साथ ही जा रही है। आकिफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब सनोबर को तो मैं तुमसे मिलवाने के लिए यहाँ नहीं ला सकता। सालार बाहर निकल आया। वो आकिफ के साथ एक बार फिर उन गलियों में जाने लगा। उसे अच्छी तरह याद था वो इस तरह की जगह में आखिरी बार वहां कब आया था। वहां कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तिजारत तब भी उसी ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। उसे बहुत अच्छी तरह याद था वो पहली बार 18 साल की उम्र में वहां आया था। फिर वो कई बार वहां आता जाता रहा था, कई बार। बाज दफा रक्स देखने, बाज दफा किसी मशहूर एक्ट्रेस की किसी महफिल में शिरकत के लिए, बाज दफा उन गलियों के दरवाजों, खिड़कियों, चौबारों से लटकती झांकती नीम बरहना औरतों को देखने के लिए। उसे अजीब सी खुशी मिलती थी उन गलियों से गुजरते हुए। वो वहां खड़ी किसी भी उम्र की, किसी भी शक्ल की लड़की को चंद घंटों के लिए खरीद सकता था। वॉलेट से निकलने वाले चंद नोट वहां खड़ी किसी भी लड़की को सर से पैर तक उसका कर देते। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मुट्ठी में होना और किसे कहते हैं, उसे सरशारी का एहसास होता। और बाज दफा वहां रात गुजारने के लिए उन औरतों के साथ जिनसे वो नफरत करता था, चंद रुपयों की खातिर जिस्म फरोख्त करने वालियों के लिए वो इसके अलावा क्या जज्बात रख सकता था। और नफरत के बावजूद वो उन्हें खरीदता था क्योंकि वो खरीद सकता था।